history is the link of future. If you know the history, then you know the future. The first quote. Second one, history is not was, it is. The third quote is जो our prime minister says कि the person who know the history, who don't know the history, have not a better past and not the better future. जो इतिहास नहीं जानते वो भविष्य भी नहीं जानते. History is the link of future. If you know the history, you know the future. So today we talk about the history and historical background of India. Firstly, this always came in our mind कि from where we start our life, or our ancestor, our forefathers, our long living persons, how they come start and what was the time period of they have living. Oftenly that question comes in our mind कि in which period the Ramayana have happened, the Mahabharata have happened. So the timeline of history tells us, the chronology of history give the a viewpoint, a concept based mindset to read of any preparation for any examination of history. So let's tell about history. If we talk the initial phase, the known as Paleolithic phase, Mesolithic phase, uh, आयरन फेज, कैल्कोलिथिक फेज, रामायण कब हुआ, महाभारत कब हुआ, तो मोटा मोटी 7,000 year ago the Ramayana have happened. All the character was alive, and the 5,000 year ago the Mahabharata was happened. So history, how history started? It started from Paleolithic period, that start from 2 million years ago to 10,000 years ago. We characterize and classified that time period is the Paleolithic. The Mesolithic period is the 10,000 years ago to 8,000 years ago. The Neolithic period is the 8,000 years ago between 2,000 years ago. And our great civilization, the India's ancient civilization, the Indus Valley, known as Indus Valley civilization, between the 2,700 years ago to 1,900 years ago. That was the time period of Indus, the first civilization of India. That period between the Indus Valley civilization, there is the Chalcolithic period. Chalcolithic period is between the 400 year ago to 4,000 year ago to 1,500 BC, before Christ. That was the time period of before Christ, means ईसा के जन्म के पहले. So history is classified and characterized by that time period. Initially BC and AD. BC is known as before Christ, not BCE. BC is the before common era. Common era is known as AD. BC is the before Christ, but BCE मतलब before common era. So Iron Age is between the 1,500 year ago to 200 BC. So these are the timeline of Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Iron Age and Indus Valley. अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पूर्वज, not talk about Hindu, Muslim, झगड़ा, लड़ाई, not anything. This is all about the history, and history tells us that if you know the past, you know the future. Those person have no past, have no future. History is not was, it is. These are the motto of that particular documentary. Okay. Initially, you all people read Haryak Vansh, Nand Vansh, Haryak Vansh, Shishunag Vansh, Nand Vansh, Maurya Vansh, Sung Vansh, Kand Vansh.
So these are the dynasty before the Mauryans and after the Mauryans, but that was the time period of uh, मोटा मोटी मौर्यन एज को कैलकुलेट करते हैं तो 324 BC to 187 BC. That was the time period of Mauryans. Before that, Nandavans. Before that, Shishunag Vans. Before that, first dynasty was the Haryanka dynasty. So you beginning from take the 1 BC, from 324 BC to इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाएंगे तो फिर नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यंका डायनेस्टी. आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना ही होगा, चक्रवर्ती सम्राट थे. श्रवणबेलगोला में इनका समाधि बना हुआ है. याद रखिए कि अभी तक किसी ने उनको अच्छे से वेल इस्टेब्लिश नहीं किया है कि सब लोग देखने जाएं. कर्नाटका श्रवणबेलगोला में अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य का समाधि बना है. मैं स्टेटस लगाता हूँ. और इसके बाद चक्रवर्ती सम्राट है सम्राट अशोक. आप लोग तो बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, मैं भी हूँ. और लोग झगड़ा करते रहते हैं कि अशोक महान या चंद्रगुप्त मौर्य महान. तो बोथ वेयर द चक्रवर्ती सम्राट, बोथ वेयर द एंसेस्टर ऑफ आवर इंडियंस, बोथ वेयर द आर्य. इसके बाद आता है संगम पीरियड. संगम पीरियड इज बिटवीन द 300 BC टू 300 AD. तो 300, 200, 100 BC, देन 100 AD. फिर एक से शुरू होता है जब हम 2023 में जी रहे हैं. देन टाइम पीरियड स्टार्ट बिटवीन 300 BC to 300 AD. देन इन मिड्स ऑफ द बोथ 1, 2, 3, 4, तब जाके आज हम 2023 तक पहुँचे. यानी टाइम स्टार्ट ऑफ 1 AD इज फ्रॉम संगम एज. उसी समय हमारा कैलेंडर आया, ग्रेगोरियन कैलेंडर. और इसकी बातें बाद में. फर्स्ट वी कंप्लीट दिस टाइम पीरियड. दिस संगम, आफ्टर दिस संगम द गुप्ता केम, मीन्स द 300 AD to 800 AD. ये टाइमलाइन हो गई एंशियंट इंडिया की. इसके बाद हमारा एंशियंट ख़त्म हो जाता है. इसके बाद हमारा शुरू होता है मिडिवल इंडिया. 800 AD के बाद हमारा मिडिवल इंडिया शुरू हो जाता है. और उस समय पोस्ट गुप्ता, मतलब 700 AD से 1857, ये टाइम पीरियड जो है तो 800 AD. तो 800 AD से 1200 AD तक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता है. त्रिपक्षीय संघर्ष हिंदी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट. आज भी लोग इन पे बड़ा डिबेट करते हैं, बट मोटा मोटी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट. इसके बाद हमारे पृथ्वीराज चौहान का शासन आता है. मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है. द ग्रेटेस्ट वार ऑफ हिस्ट्री बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों ने पढ़ा होगा. ये 1000 से 1027 तक फिर गजनी का शासन होता है. फिर 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी का शासन होता है. 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत. आप लोगों को याद ही होगा, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश. ये दिल्ली सल्तनत ये राज करते हैं 1206 से 1526 तक. अब 1526 में बाबर ने वो तहलका मचाया ना फरगाना से आके, कि 1526 के बाद इतिहास सीधे मुगल सल्तनत में पलट जाता है. मीन्स हिस्ट्री टर्न फ्रॉम दिल्ली सल्तनत एंड कम्प्लीटली टर्न द मुगल पीरियड. 1226 से बाबर, देन बाबर के बीच में एक और शेर आया था, शेर शाह सूरी, सुर एम्पायर, सुर डायनेस्टी. इसको हम मिस नहीं कर सकते. ऑल्दो वी नो कि मुगल completely dominated in the country and Delhi region as well, all the country region, but Sur Empire not forgotten that valor king.
सुर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड बड़ा ही फेमस उनका एक बना हुआ है, सड़क बना हुआ है। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, आपने देखा ही होगा ताज महल वगैरह। जहांगीर, जहांगीर के बाद सब तबाह करने वाला औरंगजेब। आज भी कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि औरंगजेब तो बड़े ही महान प्रतापी थे। अरे भाई, दे आर फॉरेनर, दे आर इन्वेडर। उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, हमारे सेवरेनिटी पे, हमारे कंट्री पे। दे आर नॉट फाइट बिटवीन द आर्यंस एंड मुगल्स एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स। दे मुगल नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। उनका कोई रिलीजन ही नहीं था। हाँ, अकबर ने ऐसा संप्रदाय चलाया था कि दीन इलाही की सबका स्वागत किया था उसने। और उसके बाद नेवर फॉरगेटन द मराठा एम्पायर, जो लड़ाई दी, जो टक्कर दी छत्रपति शिवाजी महाराज बिटवीन, आप लोग सभी जानते हैं 1680 में दे हैव डाइड एंड 1707 में औरंगजेब भी खत्म हो गए। उसके बाद द लास्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर एंड देन बहादुर शाह जफर। देन 1857 में अवर मिडिवल हिस्ट्री इज कंप्लीटेड। दिस इज द सार, दिस इज द समरी। आप कोई भी किताबें पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं, आप सिर्फ मुझे सुनिए। दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।